All right, students, let's start the lecture. Good morning. Fine. What we have done in last lecture? We have started with, I think, structure of ASP.NET web page, right? Within that, we have seen that which are the things that are possible on ASP.NET web page. There were, I think, 6 to 7 things, that is directives, code render block, code declaration block, ASP.NET control, server-side comments, server-side include directives, literal text, and HTML tags. So I think these were the things which we have seen that are possible with on ASP.NET web page. All right. After that, we have started with machine.config file and web.config file. As we have seen that machine.config file is a file which is available on machine, means it is a single file for a single machine. Whenever we will install .NET framework, that machine.config file will be created on our machine, right? And all the configurations that are needed for web applications are present within that file. After that, we have seen web.config file, and this web.config file is inherited from machine.config file. So whenever we will create web application within Visual Studio, that is within ASP.NET, this web.config file will be created within our website folder, right? And it will store all the information that are needed for our web pages. More precise, we can say that we will have one configuration file or a centralized location where we can store the different kinds of information that we need on our web pages. And we can also store different kinds of settings and configurations within that file. So up till that we have completed, right? So today we will start with WAT, that is website administration tool. We have already seen that if we want to retrieve anything from the web.config file within our code file, then we will use web configuration manager class, right? And web configuration manager class contains different kinds of properties, collections, with the help of which we are able to retrieve different kinds of information. For example, connection string, app settings, right? And many different things with the help of that class. But that is done in a code view. But if you don't want to customize web.config file with the help of code view, right? Means we don't want to do direct changes within web.config file, then we can also use GUI for that configuration file. And that GUI is known as website administration tool, right? This website administration tool will act as a graphical user interface with the help of which we are able to customize the configurations that are possible within web.config file. All right. So we can say that it will allows us to configure or customize different kinds of configurations that we need for our web application, right? And as I have told that it is graphical user interface, so obviously it will be easy for user to customize the configuration. You can also say it as a graphical configuration tool, right, for web configuration manager. मीन्स जिस हिसाब से आप वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज कर सकते हो, लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो यूज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल टू कस्टमाइज web.config फाइल, राइट? सो अगर आपको ये वेट ओपन करना है, दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल ओपन करना है, then within solution explorer you will find this kind of icon, right? This is the icon through which you will able to open this WAT, that is website administration tool. आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस हिसाब से एक वेबसाइट ओपन की हुई मिलेगी, राइट? यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट आइकन. सो ये इंटरफेस अगर आप देखोगे देन इट कंटेन्स 4 टैब्स, दैट इज होम, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडर, राइट? ये जो 4 टैब्स है, इसके ऊपर से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स आपकी web.config फाइल के लिए आप कर सकते हो. नाउ दिस WAT, that is website administration tool, is again for that particular web application only. मतलब आप दूसरी वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके लिए आपको ये सेटिंग्स अलग से करने पड़ेंगे, because we know that web.config file is for particular web application. वो पूरे मशीन के लिए नहीं है,
राइट। मतलब जैसे आप जितनी बार वेब एप्लीकेशन बनाते हो उतनी बार आपको web.config फाइल मिलती है, और वो पर्टिकुलर web.config फाइल के लिए आपको ये ग्राफिकल टूल मिलेगा जिसका यूज करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स web.config फाइल के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। सो वी कैन से दैट दिस इज द होम पेज ऑफ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम आपका लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे जो भी करंट यूजर है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट। ओवर हियर इट इज रिटन TMTBC और एक कोड है /admin। ये इस हिसाब से इसलिए आपको लिखा हुआ मिलता है बिकॉज दिस यूजर नेम इज ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन आई रिपीट, दिस यूजर नेम इज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पर्टिकुलर वेबसाइट का यूजर नहीं है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर है जिसके थ्रू हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन हुए हैं, राइट। एंड अबाउट दैट यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है, मतलब हमारी एप्लीकेशन का नेम लिखा है, दैट इज ASP.NET with VB, राइट। उसके साथ साथ आपके पास ये 3 डिफरेंट टैब्स होंगे, दैट इज सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडर। सिक्योरिटी का यूज करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आप web.config फाइल में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूजर्स डिफाइन करने हैं, उसके रोल्स डिफाइन करने हैं, उसके एक्सेस परमिशंस डिफाइन करने हैं, जो आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो, राइट। सो वो आप ये सिक्योरिटी टैब से कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट आप ये सिक्योरिटी टैब से ऑथेंटिकेशन मोड भी यूजर का सेट कर सकते हो। विद इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया ऑथेंटिकेशन मोड हम विंडोज सेट कर सकते हैं, फॉर्म सेट कर सकते हैं, राइट। वो चीज भी आप यहाँ से सिक्योरिटी टैब में से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अनदर इज एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अगर आपको एप्लीकेशन रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं तो आप ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन जो टैब है या फिर यहाँ पे ये जो लिंक है उसका आप यूज कर सकते हो, राइट। एप्लीकेशन सेटिंग्स की हम बात करें तो yesterday we have seen one example that is APP सेटिंग्स का यूज करके हमने किया था साइट नेम और ASP.NET with VB, वो दो जो नेम वैल्यू पेयर हमने स्टोर की थी, राइट, दैट इज एप्लीकेशन सेटिंग, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सेटिंग। सो वो सारी चीज आप ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन या फिर ये एप्लीकेशन टैब में से कर सकते हो। आफ्टर दैट इट इज प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यहाँ पे आप कहाँ पे आप अपने डेटा स्टोर करना चाहते हो, राइट, उसके हिसाब से आप प्रोवाइडर के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट। So this is a brief overview of website administration tool, right? ये security टैब है, see over here, ये security टैब में आप user, roles and access rules, ये 3 different kinds of settings है जो आप यहाँ से configure कर सकते हो। As you are able to see, by default authentication type is Windows, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ये ऑथेंटिकेशन टाइप चेंज करना है देन व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो आपको सेट करने देगा कि आपको विंडोज रहने देना है या फिर फॉर्म्स पे स्विच ओवर करना है, राइट। सो यहाँ से आप वो ऑथेंटिकेशन मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दैट इज आइदर यू वांट ऑथेंटिकेशन मोड एज विंडोज और यू वांट फॉर्म। आफ्टर दैट यहाँ से आप पर्टिकुलर यूजर के लिए रोल्स डिफाइन कर सकते हो, राइट। सी इट इज रिटन ओवर हियर अनेबल रोल्स। आप एक बार अनेबल रोल्स करोगे तो आपको क्रिएट और मैनेज रोल्स की लिंक मिलेगी और ये क्रिएट और मैनेज रोल से आप पर्टिकुलर यूजर को रोल्स असाइन कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट इट इज एक्सेस रूल्स, राइट। यहाँ से आप एक्सेस रूल्स को क्रिएट भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, मीन्स मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप एक्सेस रूल्स का यूज करके आप पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दोगे कि ये पर्टिकुलर यूजर या फिर ये ग्रुप ऑफ यूजर आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज एक्सेस कर पाएगा, राइट। मतलब आप उसको कंट्रोल दे रहे हो, एक्सेस कंट्रोल्स दे रहे हो कि कौन कौन सी चीज वो कर सकता है, राइट। सो दिस इज द सिक्योरिटी टैब जिसका यूज करके आप यूजर्स, रोल्स और एक्सेस रूल्स को मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, आफ्टर दैट इट इज एप्लीकेशन टैब, राइट। एप्लीकेशन टैब के अंदर आप एप्लीकेशन सेटिंग्स दैट इज APP सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, SMTP सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ से पता चल सकता है। एंड अनदर थिंग इज यू कैन ऑल्सो सेट डीबगिंग एंड ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन, राइट। आप ये एप्लीकेशन सेटिंग को देखोगे तो यहाँ पे अभी कोई भी एप्लीकेशन सेटिंग्स नहीं किए हुए हैं, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी ओवर हियर दैट इज 0।
फिर आप क्या करोगे, यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको नेम और वैल्यू पूछेगा, तो आप वहां से आप वो एप्लीकेशन सेटिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर पहले से कोई एप्लीकेशन सेटिंग्स क्रिएट किए हुए हैं और आपको उसको मैनेज करना है, दैट इज उसको मॉडिफाई करना है, तो आप ये मैनेज एप्लीकेशन सेटिंग्स लिंक का यूज करोगे तो आप वो भी कर पाओगे। After that, if you want to configure SMTP server, right, that is email settings आपको configure करने हैं, तो आप ये configure SMTP email settings लिंक के ऊपर क्लिक करके आप SMTP को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको याद होगा कि हमने जब पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल यूज किया था तो वो बाय डिफॉल्ट SMTP सेटिंग्स का यूज करता है जिसके थ्रू हम ईमेल सेंड कर पाए, राइट। सो इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर दैट SMTP सेटिंग्स तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। अनदर थिंग इज एप्लीकेशन स्टेटस। बाय डिफॉल्ट वो है एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है, राइट। अगर आपको एप्लीकेशन को ऑफलाइन ले जाना है तो आप यहाँ से टेक एप्लीकेशन ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑफलाइन हो जाएगी। मतलब अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, राइट, तो ऑफलाइन करोगे तो आप उसके अंदर चेंजेस कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट इट इज डीबगिंग एंड ट्रेसिंग, जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने web.config फाइल के अंदर system.webtech के अंदर हमने वो एलिमेंट्स डिस्कस किए थे which were related to tracing and debugging, right? So वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड along with that you can also define error page, दैट इज अगर आपको याद हो तो कल system.webtech के अंदर हमने कस्टम एरर नाम का टैग डिस्कस किया था जिसके थ्रू आप कोई भी एरर अकर होती है और आपको पर्टिकुलर एरर पेज के ऊपर यूजर को नेविगेट करवाना है, रीडायरेक्ट करवाना है, तो आप वहां पे वो एरर पेज सेट कर सकते हो। वो हम web.config फाइल के अंदर कस्टम एरर जो टैग है उसके अंदर करते थे, वही चीज अगर आपको यहाँ से करनी है तो आप ये डिफाइन डिफॉल्ट एरर पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वो चीज कर पाओगे, राइट। एंड दिस इज प्रोवाइडर टैब। प्रोवाइडर टैब के अंदर आप ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड यू कि आप अपने डेटा के लिए प्रोवाइडर सेट कर सकते हो, राइट। बाय डिफॉल्ट उसने कॉन्फ़िगर किया है ASP.NET SQL प्रोवाइडर। ASP.NET SQL प्रोवाइडर इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया है बिकॉज विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको SQL सर्वर बाय डिफॉल्ट मिलता है, राइट। इसलिए उसने SQL सर्वर के लिए प्रोवाइडर पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा प्रोवाइडर सेट करना है तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हो। सिलेक्ट डिफरेंट प्रोवाइडर की जो लिंक है उसका यूज करके भी आप वो सेट कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल विच यू कैन से इट एज अ ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन टूल के जिसका यूज करके आप web.config फाइल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जो भी सेटिंग्स है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड एज वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स, ये सारे टैब्स के अंदर आप देखोगे तो वो सारी चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन करने दे रहा है जो हमने ऑलरेडी web.config फाइल के अंदर देखी है कि हम वो कैसे कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। And you need to remember that website administration tool works with web configuration manager class, right? वो web configuration manager class के साथ वो वर्क करेगा, इसीलिए वो सारे जो भी web.config फाइल के अंदर जो सेटिंग्स है या फिर you can say it as a configuration, वो आप उसका यूज करके आप कस्टमाइज कर सकते हो, right? All right, so that was all about website administration tool. Now we will start with the topic that is 5.4 user profile. As we have already discussed, there are many different kinds of state management technique and user profile is one of them, right? हमने state management techniques देखी है. There are two categories of state management technique, that is client side state management technique and server side state management technique. अगर हम client side state management technique की बात करें, then we have already done cookies, query string, hidden field and view state. ये जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है आपके सिलेबस में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, राइट। एंड सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स आर सेशन, एप्लीकेशन, यूजर प्रोफाइल एंड कैशिंग, राइट। उसमें से हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेशन एंड एप्लीकेशन. Today we are going to discuss user profile, and as I have told, caching is not there in your syllabus. So
After this user profile is completed, we can say that our state management technique topic will get complete. All right, so let's start with user profile. As the name says, it is a profile of the user. मतलब आप यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और मोर प्रिसाइज यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, राइट? हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए राइट स्टोर करनी पड़ती है ताकि हम उसको पूरी वेबसाइट के अंदर यूज कर पाए. फॉर एग्जांपल यूजर नेम, राइट? अगर हम यूजर नेम स्टोर नहीं करेंगे ऐसी कोई स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर, देन व्हाट वी नीड टू डू each and every time we need to gather information related to the username from the database, right? So अगर हमें यूजर स्पेसिफिक डेटा स्टोर करना है, राइट, देन दिस इज ऑल्सो अनदर वे कि हम यूजर प्रोफाइल का यूज करके हम यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के लिए स्टोर कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली ये वी कैन से इट एज अ प्रोफाइल फीचर बिकॉज जो ASP.NET के अंदर इसके लिए जो क्लास है वो प्रोफाइल के नाम से है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो से इट एज अ प्रोफाइल फीचर कि जिसका यूज करके आप इजी वे में यूजर स्पेसिफिक डेटा डिफाइन कर सकते हो, राइट? और वो पर्टिकुलर यूजर के लिए आप डेटा स्टोर कर सकते हो और रिट्राइव भी कर सकते हो. नाउ हाउ इट इज प्रेजेंट? User profile is present in terms of properties, right? It is a collection of properties और वो जो collection of properties है वो हम खुद डिफाइन करेंगे कि हमें कौन कौन सी यूजर प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है. फॉर एग्जांपल हमें यूज करना है नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल. हमें ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है विच इज रिलेटेड टू यूजर प्रोफाइल, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और हमें वो हमारी वेबसाइट के लिए स्टोर करनी है फॉर पर्टिकुलर यूजर्स, राइट? तो हम वो प्रॉपर्टीज web.config फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करना है. एक बार हमने वो डिफाइन कर दिया, आफ्टर दैट हम पूरी वेबसाइट के अंदर वो यूज कर सकते हैं, राइट? एंड एज वी नो के web.config फाइल या फिर machine.config फाइल इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो XML सिंटेक्स का यूज करती है, राइट? सो जब भी हम ये यूजर प्रोफाइल डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली हम web.config फाइल के अंदर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें वो XML की सिंटेक्स भी ध्यान में रखनी है. मीन्स वी नीड टू कंसिडर द केस सेंसिटिविटी थिंग ऑफ XML, राइट? नाउ अगर आपको यूजर प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को रेफरेंस करना है, राइट, तो आप प्रोफाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, ASP.NET क्या करेगा, ASP.NEट जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है web.config फाइल के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा इन टर्म्स ऑफ स्कीमा, राइट? एंड आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिक एक क्लास जनरेट करेगा, राइट, जो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज आपके पेज के ऊपर आप जिसको आप यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, ASP.NET क्या करेगा, जो भी web.config फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस आपने डिफाइन किए होंगे, दैट इज यूजर प्रोफाइल आपने डिफाइन की होगी, वो रीड करेगा, ऑटोमेटिकली उसका क्लास जनरेट होगा, राइट? और प्रोफाइल प्रॉपर्टी का यूज करके आप अपने पेज के ऊपर उसका यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सिर्फ web.config फाइल के अंदर डिफाइन करोगे, उसके लिए क्लास जनरेशन करना है और वो जो सारी चीजें करनी है वो ASP.NET ऑटोमेटिकली कर देगा, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजर प्रोफाइल, राइट? ऑलराइट, सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आपको प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो आप प्रोफाइल का यूज कर सकते हो, राइट? नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हम जब भी कोई स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करते हैं, राइट, सो वो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए ही प्रोफाइल स्टोर करती है या फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए ही वो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. हमने अब तक ये सारी चीजें देखी है, राइट? बट अगर आपको एनोनिमस यूजर के लिए भी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, राइट, देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूजर प्रोफाइल. आपको पता है कि ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या है? ऑथेंटिकेटेड यूजर मीन्स अगर कोई यूजर क्रीडेंशियल्स देके, नाउ व्हाट इज क्रीडेंशियल्स? क्रीडेंशियल्स मीन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? जब भी कोई यूजर नेम और पासवर्ड देके आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर होता है, देन दैट यूजर विल बी नोन एज ऑथेंटिकेटेड यूजर, right? And username and password is known as credentials.
अब जब भी कोई भी यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा, तो अब तक हमने जो भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ी है, वो सारी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए वर्क करती है। Now, what is anonymous user? Anonymous users means ऐसे users जो authenticated नहीं है, मतलब उनके पास हमारी वेबसाइट के credentials नहीं है, उनके पास हमारी वेबसाइट के यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। That type of users are known as anonymous user, राइट? और ऐसे यूजर के लिए अगर आपको यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूजर प्रोफाइल, राइट? मीन्स यू कैन से कि यूजर प्रोफाइल आपको एनोनिमस यूजर के लिए भी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने की परमिशन देता है। और आपको अगर ऐसा करना है, दैट इज एनोनिमस यूजर के लिए अगर आपको स्टोर करनी है यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, देन यू नीड टू कंसीडर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। It is dependent on anonymous identification feature of user profile. Again, I repeat, it is dependent on anonymous identification feature of user profile. मतलब हमें सेट करना पड़ेगा कि हमें एनोनिमस यूजर के लिए यूजर प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन, दैट इज यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि नहीं करनी है, राइट? अगर हम ट्रू सेट करेंगे तो वो एनोनिमस यूजर के लिए भी यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा प्रोफाइल के अंदर, और अगर हम फॉल्स सेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एनोनिमस यूजर के लिए यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोफाइल्स, वो सेट मतलब स्टोर नहीं करेगा, राइट? सो दैट यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर कि अगर आपको एनोनिमस यूजर के लिए भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो आपको ये एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन फीचर है, राइट, उसको आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको एनेबल करना पड़ेगा ताकि आप वो उसको स्टोर कर पाए। ऑलराइट, अनदर थिंग इज के प्रोफाइल प्रॉपर्टी तो है ही, जिसका यूज करके हम प्रोफाइल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर की वो हम रिट्राइव कर पाए, right? But this profile feature also provides support for administration of profiles, that is for both authenticated user as well as anonymous user. और वो किसका यूज करके पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल मैनेजर, राइट? प्रोफाइल मैनेजर इज द क्लास जिसका यूज करके आप ऑथेंटिकेटेड यूजर एज वेल एज एनोनिमस यूजर के लिए आप जो भी प्रोफाइल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट? आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो अगर आप प्रोफाइल मैनेजर क्लास का यूज करते हो, तो आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो? फर्स्ट इज सर्चिंग फॉर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जितनी भी प्रोफाइल्स हमने स्टोर की है, फिर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए है या फिर एनोनिमस यूजर के लिए है, राइट? जितनी भी प्रोफाइल्स हमने स्टोर की है, अगर हमें उसकी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल मैनेजर. That is the first task which we can do with the help of profile manager. नेक्स्ट थिंग इज हम डिटरमाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स जो मॉडिफाई की हुई है और जो मॉडिफाई नहीं हुई है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे देखना है कि विद इन लास्ट मंथ कितनी प्रोफाइल्स मॉडिफाई हुई है, कितनी प्रोफाइल्स मॉडिफाई नहीं हुई है, तो वो दोनों चीज मैं ये प्रोफाइल मैनेजर का यूज करके डिटरमाइन कर सकती हूँ। बिकॉज हम इसके ऊपर से क्या डिपिक्ट कर पाएंगे, हम इसके ऊपर से क्या जान पाएंगे? अगर प्रोफाइल मॉडिफाई हुई है, राइट, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर यूजर इज एन एक्टिव यूजर ऑफ अवर एप्लीकेशन, वो फ्रिक्वेंटली हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। और अगर लास्ट 1 मंथ में कोई प्रोफाइल मॉडिफाई नहीं हुई है, राइट, सो फ्रॉम दैट वी कैन डिटरमाइन कि ये पर्टिकुलर यूजर लास्ट 1 मंथ से हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर एक्टिव नहीं है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कि हम ये प्रोफाइल फीचर का यूज करेंगे, दैट इज प्रोफाइल मैनेजर का यूज करेंगे तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर पाएंगे? ऑब्वियसली अगर हमें कोई इंडिविजुअल प्रोफाइल्स या फिर मल्टीपल प्रोफाइल्स को डिलीट करना है अकॉर्डिंग टू द लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, राइट, तो वो भी हम ये प्रोफाइल मैनेजर का यूज करके कर सकते हैं। मीन्स हमें पता चलता है कि ओके 1 मंथ इज अ लेस टाइम ड्यूरेशन, सो अगर हम ऐसा देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 मंथ्स में
कितनी प्रोफाइल्स मॉडिफाई नहीं हुई है, राइट? इट मीन्स लास्ट 6 मंथ्स में इतने यूजर्स ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं किया है, राइट? सो एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली ऐसी प्रोफाइल्स है जो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर रही है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करके रखें और हमारे हमारे स्टोरेज के अंदर स्पेस रहने दे, राइट? सो हम क्या करेंगे? ऐसी प्रोफाइल्स को हम डिलीट कर देंगे, ताकि जो भी दूसरी प्रोफाइल्स है जो हमारी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, दूसरे यूजर्स है जो हमारी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन हम फास्टर मैनर में, दैट इज विद परफॉर्मेंस, हम उसको स्टोर और एक्सेस कर पाए, स्टोर और रिट्राइव कर पाए, राइट? Means these are the three different things, three different tasks which we can perform with the help of profile manager. अगर हम प्रोफाइल मैनेजर का यूज करेंगे तो हम ये सारी चीज कर सकते हैं, राइट? नाउ हियर इज एन एग्जांपल कि हम कैसे प्रोफाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन web.config फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि system.web टैग होता है जिसके अंदर हम मोस्ट ऑफ सारी इंफॉर्मेशन web.config फाइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टैग्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हम उसको सेट कर सकते हैं। सो web.config फाइल के अंदर system.web नेम का टैग होगा, राइट? उसके अंदर हम एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन हम पहले तो सेट करेंगे कि हमें उसको एनेबल ट्रू रखना है या फिर फॉल्स रखना है। अगर हम ये एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन ट्रू रखेंगे देन वी विल आल्सो एबल टू मैनेज प्रोफाइल ऑफ एनोनिमस यूजर, राइट? सो यहाँ पे हमने एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन एनेबल इज इक्वल टू ट्रू सेट किया। उसके बाद हम प्रोफाइल फीचर का यूज करेंगे, दैट इज प्रोफाइल टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो प्रोफाइल के अंदर हम प्रॉपर्टीज टैग का यूज करेंगे, राइट? और वो प्रॉपर्टीज टैग के अंदर और हम नेम और उसकी जो डेटा टाइप है वो हम सेट कर सकते हैं, राइट? सो मैंने प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर पहली नेम जो सेटिंग ऐड किया है वो है नेम ऑफ द यूजर। सो वो मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी? ऐड टैग का यूज करूंगी। उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है उसका मैं यूज करूंगी। मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने जो प्रोफाइल डिफाइन की है उसमें फील्ड का नेम क्या है? दैट इज नेम। और उसके साथ मैंने सेट किया दैट इज अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू। मतलब ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो मुझे एनोनिमस यूजर के लिए भी सेट करनी है। आफ्टर दैट अनदर इज एज, मतलब मेरी प्रोफाइल के प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरी फील्ड कौन सी है? एज। सो मुझे वो ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी? ऐड टैग का मैं यूज करूंगी। नेम प्रॉपर्टी के अंदर ऐड दैट इज द फील्ड नेम जिसके लिए मुझे वैल्यू सेट करनी है फॉर पर्टिकुलर यूजर। अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू सेट कर सकती हूँ। और एक्सप्लिसिटली अगर मुझे डेटा टाइप डिफाइन करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर एज फील्ड तो वो भी मैं टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डिफाइन कर सकती हूँ, दैट इज system.in32। हमें पता है कि हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं दैट आर ऑफ vb.net, दैट इज इंटीजर, स्ट्रिंग, वो सारी डेटा टाइप जो हम यूज कर रहे हैं वो vb.net की डेटा टाइप है। लेकिन .net की डेटा टाइप कौन सी है? अगर हम इंटीजर की बात करें तो .net के अंदर जो डेटा टाइप है दैट इज आइदर system.in16, system.in32 और system.in64, दैट इज 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। और हम ये ASP.NET के अंदर सेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ओवर हियर डेटा टाइप हम क्या यूज करेंगे? जो .NET स्पेसिफिक डेटा टाइप है। और .NET स्पेसिफिक डेटा टाइप इज आइदर in16, in32 और in64, राइट? और हमें पता है कि अगर हम in16 लेंगे तो हम एज इजीली स्टोर कर सकते हैं, right? That's why I have specified over here that is type is equal to system.int16। मतलब ये age की डेटा टाइप क्या बन जाएगी? That is int16, that is of 16 bits। फिर ये जो टैग्स हमने ओपन किए हैं वो सारे टैग्स हमें यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे। सो ये जो प्रॉपर्टी टैग है वो मैंने यहाँ पे क्लोज किया, प्रोफाइल टैग है वो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट? यहाँ पे कंपाइलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होती है system.web टैग के अंदर, ये हमें सेट नहीं करनी है, राइट? हाँ, अगर आपको इसको चेंज करना है, कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ से debug ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू यूजर प्रोफाइल। ये जो कंपाइलेशन टैग है वो यूजर प्रोफाइल के लिए नहीं है, वो system.web टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा और अनेबल उसका डिबग की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू सेट की हुई वहां पे मिलेगी।
Again I repeat, this compilation is not related to a user profile, right? वो system.webtech के अंदर आपको by default मिलेगा. Alright. So this is the way कि आप कैसे web.config फाइल के अंदर यूजर प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ ये जो प्रोफाइल प्रॉपर्टी हमने क्रिएट की है उसके अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है और उसमें से हमें वैल्यू रिट्राइव करनी है. तो ऑब्वियसली हम कोई कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, उसकी कोई इवेंट का यूज कर सकते हैं ये प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए, राइट? सो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम कि हमने क्या किया है, एक पेज डिफाइन किया है, राइट? और वो पेज के ऊपर हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, वन इज फॉर नेम, राइट, एंड अनदर इज फॉर एज. क्या होता है जब भी ये पेज रन होता है, राइट, तो हम यूजर को क्या पूछेंगे, उसका नेम पूछेंगे और उसकी एज पूछेंगे, राइट? और हम एक बटन प्रोवाइड करेंगे, राइट, जिसकी क्लिक के ऊपर हम ये नेम और एज, वो जो यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज हमने web.config फाइल के अंदर डिफाइन की है उसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे, राइट? सो एज्यूम दैट द नेम ऑफ दिस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दैट इज फॉर नेम इज txt नेम. ये एज के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम है दैट इज txt एज, और ये जो बटन है उसका नेम है दैट इज अपडेट प्रोफाइल बटन, राइट? सो मुझे अपडेट प्रोफाइल बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ये जो txt नेम टेक्स्ट बॉक्स है और txt एज टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू मुझे वो नेम और एज प्रॉपर्टी जो मैंने web.config फाइल के अंदर डिफाइन की है उसके अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, राइट? सो यहाँ पे उसकी क्लिक इवेंट आपको दिखाई दे रही है, राइट? सो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्या किया, हमें प्रोफाइल फीचर का यूज करना पड़ेगा, राइट? ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम प्रोफाइल फीचर का यूज करके, प्रोफाइल क्लास का यूज करके हम जो भी प्रॉपर्टीज web.config फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोफाइल का यूज किया, डॉट नेम, ये नेम क्या है जो हमने ऑलरेडी web.config फाइल के अंदर क्रिएट किया है, ये वो नेम प्रॉपर्टी है, राइट? सो प्रोफाइल डॉट नेम, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट इज txt नेम डॉट टेक्स्ट. लाइकवाइज हमें एज स्टोर करनी है तो हम क्या करेंगे, दैट इज प्रोफाइल डॉट एज इज इक्वल टू txt एज डॉट टेक्स्ट, राइट? हमें पता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एंड हमने एज के लिए web.config फाइल के अंदर डेटा टाइप क्या सेट की है, दैट इज int16. सो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट? ओवर हियर यू कैन ऑल्सो यूज system डॉट कन्वर्ट नेम स्पेस के अंदर जो है फंक्शंस दैट इज to int16, वो भी आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप cint फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, राइट? मैंने यहाँ पे यूज किया है दैट इज int16 डॉट पार्स, राइट? ये फंक्शन का यूज करके भी आप जो वैल्यू txt एज के अंदर यूजर एंटर करेगा उसको int16 डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. मींस दिस इज अनदर वे कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, आप अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट कन्वर्ट नेम स्पेस के अंदर जो to int16 फंक्शन है उसका भी यूज कर सकते हो और cint फंक्शन का भी यूज कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से कन्वर्जन फंक्शन का यूज करके वैल्यू कन्वर्ट करनी है, राइट? सो दिस इज द वे कि आप कैसे यूजर प्रोफाइल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो. एंड एज यू आर एबल टू सी इट इज वेरी इजी. जैसे आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो, लाइकवाइज आप प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ओनली द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, आप यहाँ पे प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इसलिए यू नीड टू यूज दिस प्रोफाइल फीचर, राइट? और प्रोफाइल फीचर डॉट करोगे तो आप जो भी web.config फाइल के अंदर आपने वो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज डिफाइन की है वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज ऑन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन, राइट? मतलब जब भी ये पेज पहली बार रन होगा, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली web.config फाइल के अंदर हमने जो भी वो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज डिफाइन की है उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, राइट? मतलब आपको ये टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक मिलेंगे. आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक थे तो आपने उसके अंदर नेम और एज एंटर की और आपने बटन के ऊपर क्लिक किया. जैसे ही आपने बटन के ऊपर क्लिक किया, बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कोड लिखा है कि वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रोफाइल के अंदर सेट हो जानी चाहिए. सो यहाँ पे वो प्रोफाइल के अंदर सेट हो गई. एंड आफ्टर दैट पेज फिर से लोड होगा,
राइट हमें पता है कि हम कोई भी इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज प्रोसेस होने के लिए सर्वर पे जाएगा और हमें पेज वापस मिलेगा, दैट इज पोस्ट बैक होगा, मतलब पेज फिर से ब्राउजर के अंदर लोड होगा। राइट अब हमें क्या करना है, जब भी पेज फिर से ब्राउजर के अंदर लोड होता है, हमें वो जो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यू थी वो हमें फिर से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लानी है। अगेन आई रिपीट, वो जो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू थी वो हमें फिर से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लानी है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पेज लोड इवेंट का यूज करेंगे। सो हियर इट इज, राइट पेज लोड इवेंट के ऊपर हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज पोस्ट बैक और नॉट। राइट ये तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है जो हम पेज लोड के ऊपर चेक करते ही है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txt name डॉट टेक्स्ट और txt age डॉट टेक्स्ट, उसमें हमें वैल्यू कहाँ से लानी है, नेम प्रॉपर्टी में से लानी है। ये नेम प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रोफाइल के अंदर है, और ये प्रोफाइल हमने कहाँ पे डिफाइन की है, हमने वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर डिफाइन की है। राइट मतलब जो चीज हमने यहाँ पे प्रोफाइल डॉट नेम इज इक्वल टू txt name डॉट टेक्स्ट लिखा था, अब हम उसको रिवर्स कर देंगे, हम लिखेंगे txt name डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट नेम। मतलब जो प्रोफाइल के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो हमने वैल्यू सेट की है, अब वो कहाँ पे आ जाएगी, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। लाइकवाइज अगेन प्रोफाइल के अंदर जो एज प्रॉपर्टी हमने स्टोर की है उसकी जो वैल्यू है वो पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी, और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो फिर से कहाँ पे आ जाएगी, txt age जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वो वैल्यू फिर से आ जाएगी। राइट सो दिस इज हाउ कि आप कैसे यूजर प्रोफाइल की वैल्यू सेट कर सकते हो और यूजर प्रोफाइल की वैल्यू आप फिर से रिट्राइव कर सकते हो अगर वो पहले से सेट की हुई है तो। राइट ओवर हियर यू नीड टू रिमेंबर कि आप एक बार ये जो यूजर प्रोफाइल की वैल्यू है वो आप स्टोर कर दोगे। राइट ये जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हमने जो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज क्रिएट की है आप उसके लिए वैल्यू सेट कर दोगे, तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे वो वैल्यू वहां पे मेंटेन रहेगी। अगेन आई रिपीट, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे वो वैल्यू वहां पे मेंटेन रहेगी। मतलब दूसरी बार जब आप पेज रन करोगे तो आपको वो प्रोफाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी। राइट नाउ एज वी हैव ऑलरेडी सीन के अगर हमें एनोनिमस यूजर के लिए भी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज को स्टोर करना है देन इट इज पॉसिबल। हमें सिर्फ क्या सेट करना है, हमें एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन जो मॉड्यूल है उसका यूज करना है, और एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल के अंदर हमें क्या करना है, अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू सेट करना है। राइट सो जितनी प्रॉपर्टीज के अंदर हम अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू, सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टी के अंदर अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू सेट किया है। दो हम यहाँ पे एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन एनेबल इक्वल टू ट्रू सेट करेंगे, मतलब हमने एक्सप्लिसिटली सेट कर दिया कि हमें एनोनिमस यूजर के लिए भी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना है। पर कौन कौन सी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना है आप एक्सप्लिसिटली वो भी सेट कर सकते हो विथ दिस अलाउ एनोनिमस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ट्रू। मतलब ये जो अलाउ एनोनिमस प्रॉपर्टी है आप जितनी भी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के साथ लिखोगे उतनी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के लिए आप एनोनिमस यूजर की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मीन्स अगर मैंने नेम के साथ लिखा है अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू और एज के साथ नहीं लिखा है अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं नेम तो एनोनिमस यूजर के लिए मेंटेन कर सकती हूँ लेकिन वो मुझे एज मेंटेन करने की परमिशन नहीं देगा, बिकॉज मैंने उसके साथ अलाउ एनोनिमस ट्रू सेट नहीं किया होगा। राइट इट मीन्स कि जितनी भी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज को आपको एनोनिमस यूजर के लिए मेंटेन करना है सारी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के साथ आपको अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू सेट करना पड़ेगा, तो ही आप उसको सेट कर सकते हो। और अगर आपने वो नहीं किया है अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू और फिर भी आप वो एनोनिमस यूजर के लिए सेट करने जाते हो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज की वैल्यू, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। राइट वो आपको एक्सेप्शन रेज करके दे देगा। राइट ऑलराइट सो ओवर हियर यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन है वो एनोनिमस आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज HTTP मॉड्यूल के साथ आपको मिलेगा। राइट नाउ अनदर थिंग इज दैट इज प्रोफाइल प्रोवाइडर। प्रोवाइडर नेम है तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस के साथ में मतलब डेटा अगर आपको स्टोर करना है उसके लिए ही यूज होगा।
राइट। सो द थिंग इज दैट कि जो भी हम प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, अगर हमें वो वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है तो हम ये प्रोफाइल प्रोवाइडर का यूज करेंगे। मतलब हम ये प्रोवाइडर मॉडल फीचर है जो प्रोफाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, हम उसका यूज करेंगे। उसके अंदर बेस क्लास है दैट इज प्रोफाइल प्रोवाइडर, राइट। ये प्रोफाइल प्रोवाइडर जो क्लास है वो आपको क्या प्रोवाइड करके देगा? इट विल प्रोवाइड यू कैन से इट एज एन इंटरफेस और अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसका यूज करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप ये जो सारी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। मतलब आप प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के साथ डेटाबेस इंटरेक्शन भी कर सकते हो, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल प्रोवाइडर क्लास, मतलब प्रोफाइल प्रोवाइडर जो मॉडल है वो एसक्यूएल सर्वर का यूज करेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको उसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर ऑब्वियसली वो इसलिए सपोर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन विजुअल स्टूडियो और वो माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली वो अपनी ही डेटाबेस को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट देगा। सो अगर आपको एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप एसक्यूएल प्रोफाइल प्रोवाइडर क्लास का यूज कर सकते हो। मतलब बेस क्लास कौन सा रहेगा? प्रोफाइल प्रोवाइडर। उसके अंदर डिराइव्ड क्लास कौन सा होगा? दैट इज एसक्यूएल प्रोफाइल प्रोवाइडर। मतलब इट इज स्पेसिफिक टू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, राइट। और ये जो एसक्यूएल प्रोफाइल प्रोवाइडर है उसके अंदर आप ये प्रोफाइल प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिलेगी जिसका यूज करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रोफाइल फाइंड करनी है, कोई प्रोफाइल को मॉडिफाई करना है, राइट। सो उसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स वहां पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है दैट फाइंड प्रोफाइल्स बाय यूजर नेम, राइट। मतलब मैं जो यूजर नेम स्पेसिफाई करूंगी, राइट, वो पर्टिकुलर यूजर नेम से जितनी भी प्रोफाइल आपको डेटा मिलेगी वो फाइंड करके आपको रिटर्न करेगा, राइट। नाउ दिस इज हाउ कि आप कैसे ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अब तक हमने देखा कि यूजर प्रोफाइल के अंदर हम कैसे प्रॉपर्टीज के अंदर नेम वैल्यू पेयर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नेम वैल्यू पेयर को ग्रुप करना है, राइट, दैट इज फॉर एग्जांपल नेम और एज है तो वो यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फिर मैं मोबाइल नंबर और ईमेल स्टोर करती हूँ तो वो उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। फिर मैं उनके लिए उनके जो मतलब थीम्स और मास्टर पेज है वो मैं सेट करती हूँ, देन इट विल बिकम यूजर इंटरफेस, राइट। सो मुझे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोफाइल प्रॉपर्टी मुझे उसको ग्रुपिंग करना है ताकि मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है। देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन यूजर प्रोफाइल, राइट। वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज प्रोफाइल का यूज करेंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सो फर्स्ट मैं टू प्रॉपर्टीज ऐड करूंगी, दैट इज नेम एंड एज, जो हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, राइट। सो एड टैग का मैं यूज करूंगी, उसके अंदर नेम आई विल सेट इट टू नेम, अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू। दूसरी प्रॉपर्टी में ऐड करूंगी दैट इज एड टैग के अंदर नेम इज इक्वल टू एज, अलाउ एनोनिमस इज इक्वल टू ट्रू। डेटा टाइप मैंने उसकी सेट की दैट इज सिस्टम डॉट इन 16। यहाँ तक आपको पता है। अब मुझे क्या करना है? मुझे यूजर इंटरफेस के लिए मास्टर पेज और थीम की वैल्यू ऐड करनी है, राइट। तो मैंने क्या किया? उसको ग्रुपिंग कर दिया, राइट। और ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, हम ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। सो ग्रुप के अंदर हमें ग्रुप नेम देना पड़ेगा, दैट इज ग्रुप नेम इज इक्वल टू यूआई। मतलब अब ये ग्रुप के अंदर मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड करूंगी वो यूआई ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगी। सो ग्रुप के अंदर मुझे क्या यूज करना है? फिर से ऐड टैग का यूज करना है। ऐड टैग के अंदर नेम क्या दिया? मास्टर पेज। मतलब मास्टर पेज के लिए मुझे वैल्यू सेट करनी है और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दी? लेआउट वन डॉट मास्टर। मतलब मैंने कौन से मास्टर पेज को यहाँ पे कनेक्ट किया? दैट इज लेआउट वन डॉट मास्टर नाम का जो पेज है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगेन अनदर इज फॉर थीम। सो मैं क्या करूंगी? ऐड टैग का यूज करूंगी। नेम के अंदर मैंने जो प्रोफाइल का नेम है वो थीम दिया और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दी? दैट इज रेड। मतलब रेड नेम की जो थीम है वो मैंने यहाँ पे ऐड
कर दी। और ये दोनों प्रोफाइल प्रॉपर्टी दैट इज मास्टर पेज और थीम कहाँ पे कौन से ग्रुप में ऐड हुई, दैट इज यूआई ग्रुप में ऐड हो गई। लाइकवाइज अगर मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल ऐड करना है तो मैं फिर से दूसरा ग्रुप क्रिएट करूंगी, दैट इज ग्रुप नेम इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट, ऐड नेम इज इक्वल टू मोबाइल नंबर, राइट, उसकी डेटा टाइप में सेट कर दूंगी। एंड सेकंड विल बी ऐड नेम इज इक्वल टू ईमेल, राइट। और वो दोनों चीज कौन से ग्रुप में क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉन्टेक्ट ग्रुप में वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो मतलब यू कैन हैव मोर देन वन ग्रुप्स, right? Again I repeat, you can have more than one groups, but you cannot nest the group into another group. Again I repeat, आप एक से ज्यादा ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, मगर आप एक के अंदर दूसरा ग्रुप नेस्ट नहीं कर सकते, मीन्स यू कैन नॉट हैव नेस्टेड ग्रुप। जैसे हम नेस्टेड टेबल क्रिएट करते हैं, दैट इज टेबल के अंदर टेबल, राइट, वैसे हम ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन आप एक ही प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के अंदर आप मोर देन वन ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट यू वांट टू स्टोर विद इन योर प्रोफाइल, राइट। नाउ अगर आपको जो भी ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर आपको वैल्यू सेट करनी है, राइट। सो यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है, राइट। पहली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी दैट इज नेम, राइट, वो कोई भी ग्रुप में नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, प्रोफाइल डॉट नेम इज इक्वल टू निकिशा। मतलब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये जो नेम मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की है उसका यूज किया, और हमें पता है कि हमें प्रोफाइल फीचर का यूज करना पड़ेगा। सो प्रोफाइल डॉट नेम इज इक्वल टू निकिशा। लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे थीम और मास्टर पेज उसके लिए वैल्यू सेट करनी है, और ये थीम और मास्टर पेज कौन से ग्रुप में है, यूआई ग्रुप में है। सो व्हाट आई नीड टू राइट, आई नीड टू स्पेसिफाई ग्रुप नेम दैट इज प्रोफाइल डॉट यूआई डॉट थीम एंड प्रोफाइल डॉट यूआई डॉट मास्टर पेज। मतलब थीम और मास्टर पेज ये जो यूआई ग्रुप के अंदर है, सो मुझे एक्सप्लिसिटली उसका ग्रुप नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, that is profile.ui.theme is equal to Radish and profile.ui.masterpage is equal to layout1.master, राइट। मतलब अगर मुझे ग्रुप के लिए, ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको सेट करना है, तो मुझे वो पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ही मैं वो प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर फॉर द डेटाबेस, राइट। सो हमें पता है कि हमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ से मिलते हैं, machine.config फाइल में से मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे जो पाथ दिया है, इट इज द पाथ ऑफ द machine.config फाइल के कहाँ पे ये machine.config फाइल आपको मिलेगी। दैट इज विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट.नेट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर फ्रेमवर्क का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये फ्रेमवर्क रिलेटेड फोल्डर होगा, और उसके अंदर कॉन्फ़िग रिलेटेड फोल्डर होगा, जिसके अंदर आपको ये machine.config फाइल मिलेगी, जहाँ पे आपको प्रोफाइल प्रोवाइडर्स के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे नीचे लिखा है वो आपको वहां पे मिलेगा, राइट। बट वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, लेकिन हम ये कस्टमाइज कहाँ पे करेंगे, हमारी खुद की एप्लीकेशन की web.config फाइल के हम web.config फाइल के अंदर हम उसको कस्टमाइज करेंगे, राइट। सो machine.config फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए प्रोवाइडर्स मिलेंगे, प्रोवाइडर के लिए प्रोवाइडर के अंदर आपको एक ही प्रोवाइडर मिलेगा विच इज ASP.NET SQL प्रोफाइल प्रोवाइडर। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाय डिफॉल्ट SQL सर्वर डेटाबेस के लिए उसके अंदर प्रोवाइडर के लिए वैल्यू सेट की हुई आपको मिलेगी। सो ये जो नीचे जो टैग हमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है वो machine.config फाइल के अंदर आपको मिलेगा, दैट इज ऐड name is equal to, this is the name of the provider, that is property, that is ASP.NET SQL profile provider, connection string local SQL server, ये local SQL server connection string उसने by default machine फाइल के अंदर machine.config फाइल के अंदर लिखी है वो है, राइट। एप्लीकेशन नेम स्लैश, मतलब जो करंट एप्लीकेशन है वो उसको यूज करना है, और ये टाइप क्या दिया है, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर, उसने टाइप कौन सा दिया है, दैट इज system.web.profile.sql प्रोफाइल प्रोवाइडर। हमने यहाँ पे देखा था, राइट, कि हमें यहाँ पे SQL प्रोफाइल प्रोवाइडर क्लास है उसका यूज करना है, राइट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था, सो दैट वी हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर। मतलब ये machine.config फाइल के अंदर इतनी चीज बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, राइट। अगर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट।
सो सी ओवर हियर, ये इतनी चीज यहाँ पे लिखी थी, राइट? यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग नेम इट इज लोकल एसक्यूएल सर्वर, और उसके लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर भी मिलेगी, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग टैग हमें पता है, राइट? अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड टैग का यूज करेंगे, तो वो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेगा। लेकिन अगर मुझे कोई कनेक्शन स्ट्रिंग को रिमूव करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे रिमूव टैग का यूज कर सकती हूँ, दैट इज रिमूव नेम इज इक्वल टू एसक्यूएल लोकल एसक्यूएल सर्वर। मतलब पहले से अगर कोई लोकल एसक्यूएल सर्वर नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग है तो वो रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, एड नेम इज इक्वल टू लोकल एसक्यूएल सर्वर, उसके साथ मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर दी। मतलब अगर पहले से कोई कनेक्शन स्ट्रिंग है सेम नेम की तो वो उसको रिमूव कर देगा, और फिर से हम जो कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे उसके हिसाब से वो ऐड कर देगा। मतलब अगर आपको कोई सेटिंग्स को रिमूव करना है तो आप रिमूव टैग का यूज कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी सेटिंग्स को ऐड करना है तो आप ऐड टैग का भी यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर प्रोफाइल प्रोवाइडर फॉर यूजर प्रोफाइल, राइट? अगर आपको खुद का यूजर प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोवाइडर क्रिएट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल के अंदर आप प्रोफाइल टैग होगा, उसके अंदर डिफॉल्ट प्रोवाइडर आप सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट प्रोवाइडर का नेम मैंने क्या दिया, माई प्रोफाइल प्रोवाइडर, क्योंकि मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। बाद में मैंने प्रोवाइडर्स टैग का यूज किया, और उसके अंदर मैंने ऐड टैग का यूज करके माई प्रोफाइल प्रोवाइडर क्रिएट किया, और उसके लिए मैंने अपनी खुद की कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन की, दैट इज माई एसक्यूएल सर्वर, एप्लीकेशन नेम स्लैश होगा, टाइप सिस्टम डॉट वेब डॉट प्रोफाइल डॉट एसक्यूएल प्रोफाइल प्रोवाइडर। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने जो लिखी है वही है, पर यहाँ पे एसक्यूएल नेट एएसपी नेट एसक्यूएल प्रोफाइल प्रोवाइडर था और लोकल एसक्यूएल सर्वर था, वो मैंने चेंज करके मुझे खुद के लिए खुद की प्रोवाइडर क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, मैंने यहाँ पे माई प्रोफाइल प्रोवाइडर सेट कर दिया। और माई प्रोफाइल प्रोवाइडर के अंदर मैंने क्या सेट किया, माई एसक्यूएल सर्वर, राइट? और उसके बाद हम उसके लिए ये जो माई एसक्यूएल सर्वर है उसके अंदर हम हमारी खुद की कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे जो ये हमने यहाँ पे डिफाइन की है वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट ASP.NET SQL प्रोफाइल प्रोवाइडर नेम होगा, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग होगी लोकल एसक्यूएल सर्वर, जो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर आपको मिलेगी। हमें पता है कि हम मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल को चेंज नहीं कर सकते, तो हम कहाँ पे चेंजेस करेंगे, हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, राइट? सो हम ये जो बाय डिफॉल्ट जो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर है उसको हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खुद की प्रोफाइल प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रोफाइल के अंदर हम प्रोफाइल प्रोवाइडर का नेम देंगे, दैट इज माय प्रोफाइल प्रोवाइडर, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम देंगे जो हमें यूज करनी है, दैट इज माय कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट इज माय एसक्यूएल सर्वर, सॉरी माय एसक्यूएल सर्वर, राइट? अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग स्टैक के अंदर मैं नेम माई एसक्यूएल सर्वर नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट ये जो प्रोफाइल प्रोवाइडर है उसको वो पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर देगा। जो हम मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है वही चीज हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर हमारी खुद की एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, राइट? अगर हमें खुद की प्रोफाइल प्रोवाइडर क्रिएट करनी है तो, लेकिन अगर हमें बाय डिफॉल्ट यूज करना है जो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइन ओवर हियर, मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट यूजर प्रोफाइल, राइट? That is, it is a state management technique, more precise it is server side state management technique, राइट? और आपको ध्यान रखना है कि एज इट इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करेगा, सर्वर पे वो स्टोर करेगा, राइट? एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर थियोरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, राइट? सो यूजर प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट? और अगर हम सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में हमने यहाँ पे ये जो यूजर प्रोफाइल है दैट इज 5.4 वो हमने कंप्लीट कर दिया, राइट? सो
another one topic is also completed and you need to remember कि ये जो यूजर प्रोफाइल है वो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है, मतलब यहाँ पे अब आपके सिलेबस में जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है वो कंप्लीट हो गई, राइट? यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग. सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर.